ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਚੁਪੈ ਚੁਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ। ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੈ ਨਾਲ। ਕੇਵਲ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕੇਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀਅ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਹੈ। ਕਿ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆ ਹੈ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤੇ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਣ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀਅ ਲੈ ਫਿਰਦੇ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਟੋਟ। ਕਾਥੇ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾਹੇ। ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ। ਨਾਨਕ ਵਿਖਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਪਾਉ ਅਪਾਰ। ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇਹ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰਖੀਐ ਜਿਤ ਦੁਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਮੁਹਾਉ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰਖੀਐ ਭਾਉ। ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨੋ ਨ ਜਾਈ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਾਏ ਕਰੀ। ਜੇਤੀ ਸੇਠੋ ਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ। ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰ ਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ। ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਇ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ। ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨ ਪੁੱਛੈ ਕੇ। ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਤਰੇ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣੇ ਗੁਣ ਕਰੇ। ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਤਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਈ। ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ। ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ। ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਤਬਲ ਆਕਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ। ਸੁਣਿਆ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦੋ। ਸੁਣਿਆ ਮੁਖਸਾ ਲਾਹਣ ਮੰਦੋ। ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ। ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ। ਸੁਣਿਆ ਅਠ ਸੜਕਾਈ ਸੁਨਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਲਿਖਣ ਹਾਰ। ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧੇ। ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਉਣ ਕੀ ਸੁਧੇ। ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ। ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ। ਮੰਨੈ ਪਥਿਓਂ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ। ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦਵਾਰ। ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ। ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨ ਭਿਖ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣਾ ਮਨ ਕੋਏ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ। ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਿਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਸੰਤੋਖ ਤਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ। ਧਵਲੇ ਉੱਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ। ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਮਜੋਰ। ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ। ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੜੀ ਕਲਾਮ। ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ। ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ। ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ। ਕੇਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ। ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਕੁਦਰਤ ਕਮਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ। ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ। ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ। ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ। ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਪਗਸਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੌਨ ਲਿਵ ਲਾਇ ਤਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਕਮਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖੰਦ ਘੋਰ। ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ। ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵੈ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵਾ ਗਾਮਾ ਗਾਮ ਅਸੰਖ ਲੋ। ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ। ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ। ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ। ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ। ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਬਖਾਣ। ਜਿਨੇ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ। ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਹੇ। ਜੇ ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾ ਨਾਉ। ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ।
ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਰੀਆ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰੋ ਸੋਖੇ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਐ ਓਹ ਧੋਏ। ਭਰੀਆ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ, ਓਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹਿ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੁ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੁ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਭਉ ਜਾਹੁ। ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਪਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਉ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨ ਹੋਏ। ਸਵਸਤ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰੋ। ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ, ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰੋ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖਨ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁੱਤ ਮਾਹੋ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਲਾਹੀ, ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇਕ ਦੂ ਇਕ ਸਿਆਣਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਜ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪਉ ਜਾਣੈ, ਅੱਗਾ ਗਿਆ ਨ ਸੋਹੈ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ, ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਥਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇਕ ਬਾਤ। ਸਹਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਿਤੇਬਾ, ਅਸਲੂ ਇਕ ਧਾਤ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ, ਇਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ। ਨਦੀਆਂ ਤੈ ਬਾਹ, ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ। ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨ ਹੋਵਨੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੈ। ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਕਰਨਾ ਦੇਣ ਨ ਅੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨ ਅੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਇਹੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਆ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਇਹ ਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤੇ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤੇਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਕੀਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਗ ਅਪਾਰ, ਕੀਤੇ ਅਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੋ। ਕੀਤੇ ਖਪ ਟੁੱਟੈ ਬੇਕਾਰ, ਕੀਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ। ਕੀਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਕੀਤੇ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ। ਇਹ ਪੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਖਣ ਪਾਏ। ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹਿ ਖਾਏ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇਹ। ਆਖੈ ਸੇ ਪੇ ਕੇਈ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ। ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਅਮੁੱਲ ਆਵੈ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੇ, ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ। ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਅਮੁੱਲ ਨੀਸਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ। ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖੈ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਬਖਿਆਣ। ਆਖੈ ਬਰਮੇ ਆਖੈ ਇੰਦ, ਆਖੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ। ਆਖੈ ਈਸਰ ਆਖੈ ਸਿੱਧ, ਆਖੈ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ। ਆਖੈ ਦਾਨਵ ਆਖੈ ਦੇਵ, ਆਖੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵ। ਕੀਤੇ ਆਖੈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਕੀਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹੇ। ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਹੇ, ਤਾਖ ਨ ਸਕੈ ਕੇਈ ਕਹੇ। ਜੇਵੜ ਪਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ। ਸੋ ਦਾਰੂ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਵਾਜੇ ਨਾਦਾਂ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾ, ਕੀਤੇ ਬਾਵਨ ਹਾਰੇ। ਕੀਤੇ ਰਾਗ ਪਰਿਸਿਉ ਕਈਨ, ਕੀਤੇ ਗਾਵਨ ਹਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਤੋਨੋ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ। ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਗਾਵੈ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੈ। ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਣ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਇੰਦੇ ਦਾਸਨ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ। ਗਾਵੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ। ਗਾਵੈ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨੇ, ਸੁਰਗਾ ਮਚ ਪਇਆਲੇ। ਗਾਵਨ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ, 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਗਾਵੈ ਜੋਧ ਮਹਾ ਬਲਸੂਰਾ, ਗਾਵੈ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ। ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵੈ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ। ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ, ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ। ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ, ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ। ਮਾਇਆ ਜਿਨੋ ਪਾਈ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ। ਹੁਕਮ ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਈ, ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹਿਬ। ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰੁਜਾਈ, ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ। ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ, ਕਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ। ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ। ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼। ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ। ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ। ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੈ, ਲੇਖੇ ਆਵੈ ਭਾਗ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ। ਜਿਵ ਸੁਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ। ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ,
नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसै आदेश आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। एक दूजी भाव लख होवे लख बीस लख लख गेड़ा आखिया है एक नाम जगदीश। ए तो राहे पत पवड़िया चढ़िया होए कीस। सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस। नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस। आखण जोर चुपै नह जोर जोर न मंगण देण न जोर जोर न जीवन मरण नह जोर जोर न राजमाल मन सोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुटै संसार। जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए। राती रुती थित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती ताप रखी धर्मसाल। तिस विच जीए जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत। करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार। तिथै सोहन पंच परवान नदरी कर्म पवै नीसान। कच पकाई उथै पाए नानक गया जापै जाए। धर्म खंड का यो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म। केते पवन पानी वै संतर केते कान महेश। केते बरमे घाट कड़िया है रूप रंग के वेश। केतिया कर्म भूमि मेर केते तू उपदेश। केते इंद चंद सूर केते मंडल देश। केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते देवी वेश। केते देव दानव मुन केते रत्न समुंद। केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरिंद। केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत न अंत। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोड आनंद। सरम खंड की बाणी रूप तिथै घाट घड़िया बहुत अनूप। ताकियां गल्लां कथियां न जाहे जे को कहे पिछै पछताए। तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़िया सुरा सदा की सुध। कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर न कोई होर। तिथै जोध महाबल सूर तिन में राम रहया भरपूर। तिथै सीतो सीता में ममाहे ताके रूप में कथने जाहे। ना ओहे मरह न ठागे जाहे जिनकै राम वसै मन माहे। तिथै भगत वसै के लो कर आनंदो सच्चा मन सोए। सच खंड वसै निरंकारो कर कर वेखै नदर निहाल। तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथै ता अंत न अंत। तिथै लो अलो आकार जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार। ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਭਾਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਤਿਤ ਧਾਲੇ। ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਸ਼ਲੋਕ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं। गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच। नानक होसे भी सच। सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार। चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार। सह सियाणपा लख होए ता इक न चलै नाल। किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया झुकावा मैं तेरे हजूर नानक। ए शीस झुकावा मैं तेरे हजूर नानक।
बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक, बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक। अमृत वेले विच तेरा जाप उचारा मैं, तेरे नाम दी मस्ती विच ते जीवन गुजारा मैं। इस अमृत सरोवर विच फिर टुबियां मारा मैं, जो मंत्र बख्शियाए ओ दिल विच तारा मैं। तेरे नाम दी मैं पीवा ते चढ़े सरूर नानक, बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक, बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक। अमृत बाणी विच फिर मन नू लावा मैं, ए बाणी पढ़ के ते विच संगत जावा मैं। सत संगत जाके ते जस सुना ते गावा मैं, फिर तूड़ गुर सिखां दी मत्थे ते लावा मैं। मैनू हर थां दिसदा रहे तेरा ही नूर नानक, बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक, बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक। सिखिया गुरबाणी दी मेरे दिल विच वस जाए, ए तीर अणिया लाए जो दिल विच तस जाए। कई पुलियां पटकियां नू ए रस्ता दस जाए, किसे साध दी रसना विच ए बाणी रस जाए। मैं पानी टोवा बन उसदा मजदूर नानक, बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक, बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक। ए पिन्नी रैंदड़िए ओ चमकन तारे जो, ए जागण संत जना मेरे राम प्यारे जो। इना चंद दियां रिश्मां विच तेरे करन दीदारे जो, मैनू उना दा संग बख्शो हन तेरे सवारे जो। उना विच वसदा है तेरा ही ज़हूर नानक, बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक, बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक। तेरे कोलों लै सिखिया ए जीवन बनावा मैं, तस्वीर तेरी हरदम विच दिल दे वसावा मैं। तेरे गीत भी प्यारां दे हरदम ही गावा मैं, कह के तेरे चरना ते
भुल्ला बख्शावा मैं। हथ बन के अर्ज करा के बख्शो कसूर नानक, बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक, बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक। गोविंद प्रगटाया
नस वंजो किल लिखो नस वंजो नस वंजो किल लिखो नस वंजो किल लिखो करता कर आया करता कर आया करता कर आया करता कर धन गुरु नानक धन गुरु नानक नस वंजो किल बिखो करता घर आया। घर कहा है हृदय को। हे मेरे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्खा निंदा चुगली भाग जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। न समझो चले जाओ भाग जाओ। किल बिखो छोड़ दो मुझे अब। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे क्योंकि मेरा गुरु नानक मेरे हृदय में आ गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। इसी उम्मीद से बैठे हैं साथ संगत। 1:20 पे केवल गुरु नानक का प्रगट ना हो, हमारे हृदय में प्रगट हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। न समझो किल बिखो करता घर आया। प्रगटे गोपाल गोविंद लालन साध संग वखाणिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक एक पंक्ति पर एक एक घटना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह भाई बालाजी भाई मर्दाना जी समुद्र पर चलते जा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समुद्र पर भाई मर्दाना जी हैरान होकर पूछते, पातशाह हम चल भी नहीं रहे हैं, सफर भी तय हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम किस पर खड़े हैं जो इतनी तेजी से चल रहे हैं और काफी समय से मैं चला भी हूँ, उसका छोर भी दिखाई नहीं दे रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा के कहने के जरा ध्यान से देख, ये एक बहुत बड़ी मछ है, भाव मछली है।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब जो जन्म साखी में लिखा है दास वो बता रहे हैं कि ये 35 कोस लंबी मछली है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वही बात होती है कि बात समझ में नहीं आती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारे मन में कई प्रकार के शंकाएं आते होंगे, पर जो है सच है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 35 कोस लंबी मछली पर हम चल रहे हैं, हम खड़े हैं, वो चल रही है। चलो चलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशाह चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। भाई बालाजी, भाई मर्दाना जी भी चल रहे हैं। काफी समय बाद जाके उसका सर आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस मछली का सर आया। और जन्म साखी में ये पॉइंट वहां पे लिखा है कि इस पे शंका मत करना कि 35 कोस लंबी मछली कैसे हो सकती है, क्योंकि कहते हैं आगे एक ऐसी घटना है, भाई बालाजी कहते हैं, जिसमें 135 कोस लंबी मछली पर हम बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दास तो चलो आप लोगों को पता ही होगा, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है। अफ्रीका गया था, वेस्ट अफ्रीका। यहाँ से समुद्र शुरू होता है फ्लाइट में, 8 घंटे तक अदीस अबाबा एयरपोर्ट आता है। 8-10 घंटे तक लगातार नीचे समुद्र ही पानी दिखाई देते, दूर दूर तक कोई ज़मीन नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये धरती हमारी पता ही है सबको, 70% पानी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर इतने घंटे की फ्लाइट में कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा सिवाय पानी के, तो इतनी बड़ी मछली का होना कोई नामुमकिन बात नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उस जमाने में तो हो भी सकती थी। गुरु नानक पातशाह चल रहे हैं, मछली के सर पे पहुंचे। तब भाई बालाजी कहते, भाई मर्दाना जी कहते, पातशाह यहाँ क्यों आए हम? कहते अभी पता चल जाएगा। मेरे गुरु नानक पातशाह ने अपने चरण थोड़ी जोर से उसके सर पे हल्के से ऐसे किया, टाप दी अपने चरणों की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो मछली इंसान की आवाज में बोल पड़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, इन्हें बहुत सारी शंकाएं हैं, तू ही बता, तुझे ये जोनी कैसे मिली? बड़ी ध्यान से सुनना साथ संगत जी। गुरु नानक पातशाह के जीवन की हर घटना बहुत सारे उपदेश संदेश देती है। गुरु नानक उपदेश कहते हैं, जो सुने सो पार पर आनत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो सुनेगा उसके ऊपर चलेगा, वो पार उतारा हो जाएगा। मेरे गुरु नानक पातशाह ने जब मछली के सर पे पैर रखा तो मछली बोल पड़ी इंसान की आवाज में। कहने लगी, मेरा समय आ गया, आप आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब मेरी मुक्ति हो जाएगी। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, सारी घटना बता। तब उसने कहा कि मैं सतयुग के समय, ध्यान से सुनना साथ संगत, एक ऋषि हुआ हूँ सतयुग के समय, और जल में खड़े रह के गर्दन तक दिन रात तप करता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कठिन से कठिन तप किया, कई सालों तक तप किया जल में खड़े रह के। एक दिन ईश्वर की कृपा, राजा जनक वहां से गुजरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा जनक, भगत वड्डा राजा जनक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसने अपनी एक घड़ी का सिमरन देकर सारे नरक खाली करवा लिए थे, वो राजा जनक। बड़े बड़े ऋषि मुनि उसके शागिर्द अपना गुरु मानते थे राजा जनक को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो राजा जनक वहां से गुजरे, मुझे देखा, मुझ पे तरस आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से सुनना साथ संगत, कितनी इंपॉर्टेंट पहलू है। जल में खड़े होकर तप करता है कई सालों से, उम्र खत्म हो गई, तप करते जा रहे करते जा रहे। राज जनक वहां से गुजरा, उसे देखा, तरसा, कहने लगे, हे ऋषि जी,
अगर आप कहें तो मैं आपको ज्ञान दूँ। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। तो ऋषि ने आवाज़ सुनी, देखा सामने राजा जनक, जानते थे कि अत की कमाई है राजा जनक की, सर झुका दिया, कहने कि आप मुझे ज्ञान दीजिए। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। कहने कि तुझे देख के तरस आया तो ज्ञान दे रहा हूँ। अगर ज्ञान तभी देना चाहिए सामने वाला लेने का इच्छुक हो। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। मुफ्त में नहीं देना चाहिए, कोई वैल्यू नहीं होती। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। मुफ्त के ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं होती, जब तक उसकी कीमत नहीं चुका दो ना तब तक ज्ञान हासिल नहीं होता। पिता माता जितना भी समझाते जाए ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, चोट लग जाएगी बच्चे को समझाए, पर जब तक बच्चा गिर नहीं जाता ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। बात उसकी समझ में नहीं आती, हाँ चोट लग गई अब दर्द हो रहा है, फिर से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक हम किसी चीज़ की कीमत नहीं चुकाते ना तब तक वो ज्ञान हमारे काम भी नहीं आता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बहुत गहरा पॉइंट है। कीमत जरूरी नहीं पैसों में ही हो, कीमत जरूरी है मतलब उसे एहसास होना चाहिए कि ये कीमती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे धन से हो, चाहे मन से हो, चाहे तन से हो। किसी ने सेवा कर करके सिमरन कर करके गाल ना गाल के कोई अवस्था हासिल की हो, उसे कैसे संभालेगा फिर? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डरते हैं ना कि कहीं अवस्था चली ना जाए। आज मन निंदा से ऊपर उठ गया है, मन नहीं करता करने का, फिर से कहीं वो बात न बन जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसे कहा है कि गुरुमुख जागते हैं सदा, वो सोते नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि शरीर नहीं सोता, उनका मन नहीं सोता, मन जागृत अवस्था में रहता है। भिन्नी रैनड़िए चामकन तारे जागे संत जना मेरे। जागे मतलब एक तो रात को जागना होता है अमृत वेले, तन तो जागेगा ही। इनका मन हमेशा जागा रहता है, डर के। किस डर से? कि काम क्रोध लोभ अहंकार चोर लूट ना ले मुझे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जागृत अवस्था में रहता है मन, हमेशा अलर्ट, कहीं कुछ गलत ना हो जाए मुझसे, कहीं गलत देख ना लूँ, गलत सुन ना लूँ। इसे कहा है जागे संत जना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक पॉइंट बीच में याद आ गया, वो ले लेता हूँ। जब बात आई ना कीमत की, जब तक किसी चीज़ की कीमत ना भरनी पड़े तब तक उसका एहसास नहीं होता, चाहे बात छोटी हो चाहे बड़ी हो। एक राजा, सुना कि बहुत बड़े ज्ञानी महापुरुष आए हैं राज्य में, बड़ी दुनिया उन्हें पूछती है, तो राजा ने उन्हें अपने महल में बुलाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते प्रवचन हमारे महल में आके करो, मैं भी सुनो। तो वो फकीर कहता है मुफ्त में नहीं करूँगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा सोचने लगा, मैंने तो सुना था भाई कि ये फकीर है, लोग पूछते हैं तो धन का लालची है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फकीर कहने लगा नहीं लालच नहीं है मुझे कोई लालच नहीं, पर मैं तुझसे धन लूंगा जरूर, तभी ज्ञान दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा कहने लगा फकीर है क्या मांग लेगा? 100-200 स्वर्ण मुद्रा मांग लेगा, दे दूंगा। कहने लगा ठीक है बताओ। कहने लगा नहीं। फकीर कहने लगा 100-200 नहीं जो मन में सोच रहा है, 50,000 स्वर्ण मुद्रा चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब राजा है, सारी प्रजा के सामने, सारे मिनिस्टर्स के सामने उसे ये कहा जा रहा है 50,000 स्वर्ण मुद्रा दे तब तुझे ज्ञान दूंगा। फकीर कह रहा है अभी राजा ना कैसे करे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर 50,000 स्वर्ण मुद्रा बहुत ज़्यादा होती है राजा के लिए भी। सोच में पड़ गया, कहने का कोई अद्भुत ज्ञान ही होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अद्भुत ज्ञान ही होगा, इतना महंगा, कुछ कमाल की बात ही होगी, नहीं कहीं पछताना ना पड़े ना लेके। तो राजा ने 50,000 स्वर्ण मुद्राएं दी। कहने का राजन मुझे नहीं चाहिए, सब गांव में बाहर पहले बंटवा दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर तुझसे मैंने कीमत ले ली, मैं कुछ भी करूँगा। फकीर ने लेके सारे राज्य में बंटवा दिए और फिर कहा अब मैं तुझे ज्ञान देता हूँ। राजा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, पता नहीं ब्रह्म ज्ञान मिलने वाला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहता राजा कोई भी काम करने से पहले ना 2-4 बार सोच लिया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी भी चीज़ को अच्छे से परख लिया करो, कोई भी काम करने से पहले सोच लिया करो। राजा हैरान हुआ, कहता और ज्ञान? कहते यही ज्ञान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो राजा कहता कैसा फकीर है, इतना महंगा 50,000 स्वर्ण मुद्रा में क्या क्या कह रहा है कि कोई काम करने से पहले सोच लिया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो कॉमन सी बात है, हर एक को पता है। राजा कुछ कह नहीं पाया, फकीर है, सब लोग देख रहे, कुछ नहीं कहा। मन में गुस्सा रख के
चुप कर गया, फकीर चला गया। फिर हर जी बोलिए धन गुरु नानक। वो बांट भी चुका है 50,000 स्वर्ण मुद्रा, वापस भी नहीं ले सकता, फकीर को क्या करेगा। फिर हर जी बोलिए धन गुरु नानक। राजा गुस्से का घूंट पीकर चुप कर गया। ये बात अचानक बीच में याद आ गई पॉइंट के साथ। तो समा बीता और इसके मन में बात बैठी 50,000 स्वर्ण मुद्रा, इतना मैं मूर्ख बन गया। फिर जी बोलिए धन गुरु नानक। 50,000 स्वर्ण मुद्रा ले गया, बंटवा दी सारी उसने, और कहा गया कोई भी काम करने से पहले सोच लिया करो। फिर जी बोलिए धन गुरु नानक, परख लिया करो। समय बीता, ये बात उसके मन में घर कर गई। एक दिन राजा बाहर गया कुछ दिनों के लिए। जब वापस आया तो देखा कि उसकी रानी के साथ एक जवान आदमी सोया हुआ है। फिर जी बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब एक राजा अपनी रानी को किसी और के साथ देखे बिस्तर पे, पलंग पे, तो उसने तो मयान में से तलवार निकाल ली। फिर जी बोलिए धन गुरु नानक कि रानी को भी मार दूंगा, इस आदमी को भी मार दूंगा, दोनों को मार दूंगा। और जैसे ही मारने लगा याद आया 50,000 स्वर्ण मुद्रा ले गया था। फिर जी बोलिए धन गुरु नानक। और कहा था कोई भी काम करने से पहले सोच लेना। 50,000 स्वर्ण मुद्रा दी है, थोड़ा सोच ही लेता हूँ। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नहीं तो मार देता, 50,000 दिया था, कीमत थी इस ज्ञान की। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। इसने रानी को उठाया, कौन है ये? फिर से बोलिए धन गुरु नानक। वो रानी उठते ही बोलती अच्छा आ गए आप, अच्छा हुआ आप आ गए, ये कल ही आया है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। हमारा बेटा है जो गुरुकुल में पढ़ने भेजा था, बड़ा होकर आया है, उदास था आप नहीं थे तो मैंने अपने पास सुला लिया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राजा हैरान हो गया कि 50,000 स्वर्ण मुद्रा महंगी नहीं, सस्ती पड़ गई। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अपनी बेटी अपनी घरवाली को खुद ही मार देना था इसने, क्योंकि 50,000 दिया था तो ज्ञान की वैल्यू थी तो रुक गया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बस गुरु मेहर करी ज्ञान हमारे दिमाग में बैठ जाए कि अमृत वेला कितना कीमती है। 40 दिन रोज उठे हैं, रोज स्नान किया है, रोज चल कर आए हैं, इतने घंटे बैठे हैं, तब जाके ये शरीर ये मन माना है कि रोज उठना है। तब जाके अब जाके अगर आलस करके कल सो गए तो 40 दिन का मेहनत। अब सोचो, ये साइंस है, साइंस रशियन साइंटिस्ट ने प्रूफ किया है कि अगर किसी चीज़ की आदत डालनी हो या किसी चीज़ की आदत छोड़नी हो तो 21 दिन वो काम कर लो। सेम काम, खाना कम करना हो, शराब छोड़नी हो, 21 दिन किसी तरह से कोई कर ले, आदत पड़ जाती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बुरी आदत छूट सकती है, सही आदत बन सकती है। 21 दिन कोई कर ले, और गुरु ने हमसे 42 दिन करवाया है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और फिर भी अगर हम इसकी कीमत नहीं समझे अभी तक, और परसों सो गए, आज रात तो यहीं पे हो गया अमृत वेला, सुबह भी हो जाएगी, गुरु नानक मेहर करेगा। उसके बाद दरबार में जाएंगे, वहाँ पे कीर्तन करेंगे, अमृत वेला करके ही सोएंगे। परसों आपकी मर्जी है क्या करना है, हमारे हाथ में। गुरु नानक ने जो करना था वो कर दिया है, ज्ञान दे दिया है, समझ दे दी है। धोबी बनना है कि वो जौहरी बनना है जो गधा बना था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरी तो गुरु नानक के चरणों से अरदास है कि सबको अमृत वेले की दात दे दे। आप सब भी यही मांगना है, गुरु नानक आज आपका अवतार पूर्व है, प्रकाश पूर्व है, जन्मदिन है, हमें रिटर्न गिफ्ट दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेले की दात परमानेंट दे दे, परमानेंट। सत्संगत में बैठ के तेरा नाम जपे, घर में तो जपे ही, और सत्संगत में आके तेरा नाम जपे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो मछली जो ऋषि मुनि जो मछली बोल रही है, कहने लगी सतयुग में मैं जल में खड़ा हूँ, राजा जनक वहाँ से गुजरा, कहने लगा मैं ज्ञान दूँ आपको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा जनक को तरस आ गया इतना तप देख के कठिन मेरा, कहने लगा हाँ जी दीजिए ज्ञान। तो राजा जनक कहने लगा ये छोड़ जो तू ये कर रहा है, बहुत कर लिया। अगर सच में चाहता है तुझे कुछ प्राप्त करना चाहता है, कहते भगवान को पाने के लिए कर रहे हैं ना, कहने लगा हाँ। अगर प्राप्ति चाहता है तो जहाँ साधु मंडली बैठकर नाम जप रही हो, जहाँ पे सत्संगत हो रही हो, वहाँ पे बैठ जा जाके बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट समझो क्या कहा, जहाँ पे साधु बैठकर नाम जप रहे हो, जहाँ सत्संगत हो रहा हो, वहाँ जाके बैठ जा बस। ये भक्ति कुछ भी नहीं है उसके सामने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
ये जो तू तप कर रहा है उस सत्संगत के सामने कुछ भी नहीं है। राजा जनक ने सतयुग में कह दिया कि वहां बैठ जा, तेरा पार उतारा हो जाएगा। पर कहता है मैं नादान राजा जनक से क्या कह बैठा, नहीं नहीं मुझे यहाँ बड़ा आनंद आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले मैं थोड़ा और समय जल में अपनी तप कर लूं, फिर कभी जाके सत्संग कर लूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ज्ञान दिया राजा जनक ने तरस करके, ऊपर से आगे से ये कह रहा है कि मैं अभी नहीं करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पॉइंट समझना हम पे लागू होता है। तब राजा जनक के मुख से निकल गया, राजा जनक अति की कमाई वाले थे साथ संगत जी। और महापुरुषों, बड़े बड़े महापुरुषों का ये कहना है, उनका निचोड़ है कि गुरु नानक पातशाह ही राजा जनक थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा जनक ही गुरु नानक पातशाह बने थे, कितनी कमाई थी। ये महापुरुषों का निचोड़ है। बाबा नंद सिंह जी ये वचन किया करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे, फिर जब राजा जनक ने सुना, उनके मुख से निकल गया कि ठीक है, फिर अगर तू जल में आनंद लेना चाहता है तो एक बड़ा जल का जानवर बन के क्यों नहीं जल का आनंद लेता रहे। फिर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अपनी तृष्णा पूरी कर रहे जल में तैरने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर भक्ति फिर कभी कर लेना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुख से निकल गया। कहने लगे, उसी वक्त मुझे दिखाई देने लगा कि मेरा क्या रूप होने वाला है, मेरे साथ क्या होने वाला है। मैंने माफ़ी मांगी राजा जनक से कि मुझसे भूल हो गई, आपने मुझे इतना बड़ा ज्ञान दिया और मैंने सतवचन नहीं कहा, सत्संग छोड़ के अपने तप को प्रधानता दी, मुझसे भूल हो गई, क्षमा कर दो। राजा जनक कहने लगे, अब क्षमा गुरु नानक जी कल युग में आके करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कल युग में गुरु नानक जी आएंगे और तुझे तेरा पार उतारा करेंगे। तो कहने लगा, मैंने बेनती की कि मुझे कैसे पता चलेगा कि गुरु नानक आ गए हैं। कहने के पता चल जाएगा, वो आएंगे, अपने चरण तुझ पर रखेंगे, तुझे सारा ज्ञान हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वो समा आ गया। अब वो कहती है मच्छ कि मेरा पार उतारा कर दो, मुक्ति दे दो मुझे। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, 8 पहर बाकी है तेरी जीवन के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 8 पहर बाकी, भाव एक पूरा दिन है तेरे पास, अब सिर्फ वाहिगुरु 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 करते जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 8 पहर तक लिव जोड़ के वाहिगुरु करते जा, तेरी मुक्ति करके ही यहाँ से जाएंगे, आए ही तेरे लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साथ संगत जी, ये उस राजा जनक का श्राप नहीं था, ये सृष्टि का नियम है। गुरु नानक पातशाह के वचन लिखे हुए, फिर से रिपीट कर दो। हो सकता है ऋषि मुनि जो कंदरों में बैठे हैं, तप कर रहे हैं, उन्हें कब मिलेगा मैं नहीं जानता। गुरु नानक पातशाह कहते हैं मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, बहुत गलतियां कर बैठते मैं नहीं जानता। पर कहते जो गृहस्थ आश्रम में रह के, भाव शादीशुदा, बच्चों को पालन कर रहा है, दुकान संभाल रहा है, मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे झंझट होते हैं। गृहस्थी आसान नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेहनत करना, पर कहते कोई ईमानदारी की मेहनत करे, गृहस्थी धर्म, उसमें से दसवंध निकाले और साधु संतों की, गरीब जरूरतमंदों की सेवा करे उस दसवंध से। दूसरा, अमृत वेले उठ के नाम जप ले। गुरु नानक पातशाह के वचन लिखे हुए हैं, 2.5 घंटे अमृत वेले गुरु नानक को जो दे देगा, जो निरंकार की याद में बैठेगा, ऋषि मुनि पाएंगे कि नहीं मैं नहीं जानता, पर जो सत्संगत करेगा गृहस्थी अमृत वेले उठ के, उसे जरूर प्राप्ति हो जाएगी। गुरु अमरदास जी से संगत ने सवाल किया, पातशाह हम गृहस्थी हैं, आप कहते हैं श्वास श्वास सिमरन करो, हमसे नहीं होता, दुकान है, झंझट है, कई प्रकार की हेक्टिक शेड्यूल होता है, हम नहीं कर पाते, हम क्या करें? 24 घंटे श्वास श्वास सिमरन नहीं कर पाते, हमारा पार उतारा नहीं होगा। गुरु अमरदास जी ने तो इसमें भी छूट दे दी। साथ संगत जी, सारे महापुरुषों ने, गुरु नानक पातशाह ने 2.5 घंटे कहा। गुरु अमरदास जी कहने के तरस आ गया उन्हें, कहने लगे ठीक है। कहने लगे एक नाव नदी में तैर रही हो, कभी तैरते हुए देखी है? नाव सारी की सारी पानी में डूबी होती, 4 उंगली बार होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छोटी नाव जो होती है ना, जो नदी को पार करती है, 4 उंगली इतनी सी बार होती है, दास बैठा है उसमें और इतना किनारा दिख रहा होता है, बाकी सब डूबी होती है अंदर। कहते 4 उंगलियां नाव बाहर है, नदी को पार कर जाती है। कहते कोई 4 घड़ियां केवल अमृत वेले की संभाल ले, 4 घड़ियां, एक घड़ी 24 मिनट की, 1.5 घंटे से थोड़ा सा ऊपर समय बनता है। इतनी छूट दे दी गुरु अमरदास जी ने, केवल 4 घड़ियां कोई अमृत वेले की संभाल ले, पार उतारा हो जाएगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक।
संभाल लो भाई, संभाल लो, जरूर संभाल लो, इस जन्म को सफल कर लो। ये बाजी जीतने आए हैं, ये जुआ चल रहा है। ये जन्म को बाजी का है कबीर जी ने। कहे कबीर जीत के हार बहुविध कहो पुकार पुकार। कहते विचार कर, तू जीत रहा है कि हार रहा है। जब जुआरी जुआ खेलता है तो विचार करता है, मैं जीत रहा हूँ कि हार रहा हूँ, उठू ही के बैठूं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, कौन सी बाजी खेलूं, कैसे जीतूं। कहते विचार कर, कबीर जी कहते, जुआरी की भाषा बोल रहे हैं। कहे कबीर जीत के हार बहुविध कहो पुकार पुकार। पुकार पुकार के कह रहा हूँ कि तू जीत रहा है कि तू हार रहा है, अपने मन में झांक। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर तो अमृत वाला संभाल लिया, जीतने की तरफ चल पड़े। अगर नहीं संभाल सके, बाजी हारने की तरफ चल पड़े। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। न सिवंजो किल बिखो करता। हे गुरु नानक मेरे घर में आ जा, मेरे हृदय में आ जा, ताकि मेरा नेम कभी भी ना छूटे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। नेम रोकता कौन है? काम। नेम रोकता कौन है? क्रोध, लोभ, मोह। मोह में फंस के आदमी नेम छोड़ देता है, क्रोध में फंस के आदमी नेम छोड़ देता है, काम वासना में फंस के आदमी नेम छोड़ देता है। जब यही नहीं रहेंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, काबू में आ जाएंगे। ना समझो, ये अरदास है, आओ सब मिलके करें। न समझो किल बिखो, न समझो न समझो किल बिखो, न समझो किल बिखो। करता कर आया, करता कर धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह, आज उनका ही साखिया, उनका ही जीवन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर आप कभी गुरु नानक पातशाह का जीवन पढ़ना शुरू करेंगे ना, जन्म साखी लेकर, इतना रस आएगा साथ संगत जी, इतना रस आएगा। वो भाषा भी बड़ी प्यारी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पुरातन भाषा होती है ना, हाँ जी, कर से जी, और कहाँ जाए से जी, बड़ी बहुत ही प्यारी भाषा है। मैं तो कन्वर्ट करके आपको सुनाता हूँ ना, क्योंकि शायद आधी चीज़ें समझ ना आए, पर वो पढ़ के ही बड़ा आनंद आ जाता है कि उस ज़माने में ये भाषा बोली जाती थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे पास एक पुरातन जन्म साखी है। मैं बहुत लोगों से कहता रहता था कि पुरातन हो तो देना, क्योंकि नई में ना बहुत सारी मिस्टेक्स या बहुत कुछ चेंजेस वेंजेस की हुई है। पुरातन में जो भाई बालाजी ने लिखाई थी, हस्तलिखित, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर मुझे कहीं से मिली, किसी ने दी, कि उसके 200-250 साल पुराने उसके ख़ानदान में चलती आ रही है। तो मैं बड़ी सावधानी से लेके आया। कमाल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह, अगर आप, मैं कह रहा था, अगर वो जन्म साखी पढ़नी शुरू करो ना, तो ऐसे मन की अवस्था बना देती है वो
कि आपको चलोगे तो सामने गुरु नानक चलते हुए दिखाई देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप चल रहे हो ना अकेले में कहीं जंगल में वॉक पे या कहीं पे, क्योंकि गुरु नानक पाशा चल रहे हैं, बार बार आता है गुरु नानक पाशा चल रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई बालाजी साथ में चल रहे, भाई मर्दाना जी चल रहे हैं, चल चल के गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुनिया को तारने मेरे गुरु नानक पातशाह एक पेड़ के नीचे बैठे कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन नई जगह पे चले गए। तो वहां पर जहां भी जाते हैं कीर्तन शुरू कर देते हैं। कीर्तन नहीं तारा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कल युग में कीर्तन प्रधाना, गुरुमुख जपिए लाए ध्याना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कीर्तन भक्ति को कल युग में प्रधान भक्ति कहा गया है। इसमें जिसका मन किसी भक्ति में न जुड़े, इसमें जुड़ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संगीत शब्द के साथ मिलकर एक जादू का काम करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगीत की अपनी ताकत है, पर जिसके साथ जब वाणी मिल जाती है, वाणी की ताकत अथाह है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब दोनों मिलते हैं तो ऐसा जादू करते हैं कि जिसका मन कहीं ना जुड़ा उसका भी जुड़ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह बैठे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। क्या देखते हैं कि बहुत थोड़ी थोड़ी करके संगत बढ़ती जा रही है। रोज कीर्तन का रस ऐसा है। एक आदमी समय से पहले आता है और समय सब चले जाते हैं, उसके बाद जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेले गुरु नानक पातशाह कीर्तन करते हैं, लोग जुड़ने शुरू हो गए। एक आदमी कीर्तन शुरू होने से पहले आके बैठ जाता है और ख़त्म होने के बाद सब चले जाते हैं, फिर जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह का ध्यान उस पर चला गया। अब ये पॉइंट है एक, शुरू होने के बाद आना, ख़त्म होने से पहले चले जाना। ये भी करते हैं हम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मजबूरी होती है कईयों की, मैं ये नहीं कहता कि ऐसे ही करो, पर देखो ना गुरु का ध्यान कब गया उस पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट है ना। कोई पहले आके बैठ जाएगा, गुरु देखेगा ना ये पहले आके बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई बहुत गुरु अर्जन देव जी महाराज की नज़रों में आने के लिए एक सिख ने इतनी सेवा की कि गुरु साहब जी मुझे देख लें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो साकी बीच में याद आ गई। एक दीवार को कुछ करना था, गुरु अर्जन देव जी महाराज कह गए यहाँ पे वो दीवार बना दो लंगर हॉल की। वो अकेला ही मिट्टी में लिबड़ के अकेला ही दीवार बनाने लगे। पुराने ज़माने मट्टी से पोती करते थे ना, अकेला ही लग गया फटाफट। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वो जो चाहता तो हो गया। गुरु अर्जन देव जी महाराज का ध्यान उसकी तरफ चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तरीका होता है गुरु का ध्यान अपनी तरफ खींचने का। अनथक सेवा, गुरु का ध्यान जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये तो गुरु नानक है भाई। कोई छिपके भी कहीं सेवा कर रहा होगा ना, वहाँ पे भी ध्यान होता है, जबकि वहीं पे ध्यान होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो गुरु नानक पातशाह ने इसे अपने पास बुलाया। कहने लगे कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, वो आता है, बैठता है, कीर्तन सुनता है, बड़े आनंद से सुनता है, और फिर सबसे आखिर में जाता है, सबसे पहले आता है। क्या ख्वाहिश है मन की? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगा भाई पातशाह मन का हाल मत पूछो, मेरा मन पापी है बहुत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ा प्यारा पॉइंट है, बहुत ही प्यारा। गुरु नानक पातशाह कहने लगे नहीं बताना। कहते आप अंतर्जामी हो। कहने लगे हम चाहते तू बोल के बता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह कहते हैं तू बोल के बता। तो वो कहता है कि पातशाह जिस दिन आप पहली बार कीर्तन कर रहे थे ना, मैं आके बैठा सुना, मुझे इतना रस आया। तो मैं हूँ गरीब आदमी, बहुत गरीब हूँ। मैं और मेरी घरवाली हैं, हम लोग दिन में एक टाइम भोजन खाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना ही कमा पाता हूँ, थोड़ा सा बनता है। तो मैंने जैसे ही सोचा कि अगले दिन आपको अपने घर में ले जाऊँगा, खाना खिलाऊँगा, अगले दिन आपको अपने घर ले जाऊँगा, खाना खिलाऊँगा। तो मैंने देखा अगले दिन कुछ संगत आ गई है। 10-15 लोग आके कीर्तन सुनने लग गए, और किसी सेठ ने आके आपके बुलाया, आप वहाँ चले गए और 15 लोग साथ में ले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा पड़े, कहने के मैं चुप कर गया।
चलो कल संगत कम होगी तो कल बुला लूँगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 4-5 लोगों का तो मैं अरेंज कर सकता हूँ, उधारी मांग लूँगा किसी से। उधारी जब मांगूंगा तो 4-5 लोगों के लिए मैं अरेंज कर लूँगा भोजन। इससे ज़्यादा मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी समर्था नहीं है। तब गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा के कहने लगे, अब क्या चाहता है? कहने की सारी बात सुनो पहले। दूसरे दिन, तीसरे दिन संगत बढ़ती गई और मेरे मन में ये है कि संगत कम क्यों नहीं हो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस दिन कम होगी मैं आपको बुला लूँगा। और बढ़ते ही जा रही है। सोचो ना पातशाह, मैं कितना पापी हूँ। लोगों का भला हो रहा है कीर्तन सुनकर, लोगों का जीवन बदल रहा है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि संगत कम हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने अपने मन को समझाया, तो क्या कर रहा है, ऐसे मत सोच। पर मन मानता ही नहीं। मन करता है कि आप मेरे घर पे आओ, पर इतने लोगों को मैं नहीं खिला सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं कितना पापी हूँ पातशाह। आप कहते हो कि मन की बता, मैं मन की क्या बताऊँ, मैं तो पापी हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो लिखा है घटना में कि गुरु नानक पातशाह की आंखें भी भर आई। जो वहाँ संगत बैठे थे उनकी आंखें भी भर आई, और इस सिख की आंखें तो भरी हुई थी। तो गुरु नानक पातशाह कहने लगे, कल हम 4 सिखों के साथ तेरे घर पे आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम 5 आएंगे बस। तो हमारे लिए भोजन तैयार कर, तेरे घर में आके भोजन खाएंगे। तूने जितनी सच्चाई से, जितनी ईमानदारी से अपना गुनाह, अपने अंदर की बात संगत के सामने रखी है, हर चीज़ की माफ़ी है तुझे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब ये घर गया और इतना खुश कि कल गुरु नानक पातशाह आएंगे 4 लोगों को लेके। 5 लोगों को मैं अरेंज भी कर सकता हूँ। घर वाली से कहता, चिंता मत करी, मेरी चलती है बाज़ार में, मुझे 2-3 दुकानदार उधार दे देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं राशन ले आऊँगा, बाद में मेहनत करके चुका देंगे। कोई राशन ले आया, राशन ला के रखा है। इतिहास में लिखा है वो रात ख़त्म ही नहीं हो रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दोनों घर वाली पूरी रात गुरु नानक को इंतज़ार करते रहे कि सुबह होगी गुरु नानक जी आएंगे, सुबह होगी गुरु नानक जी आएंगे। वो रात ही ख़त्म नहीं हो रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक के आने का समय हो रहा है, 50 मिनट बाकी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक वो साथ जो चाहे कर दे। इशारा कर दिया चिता की तरफ तो उसको लेने जमदूत नहीं देवता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निगाह भर के देख लिया, संत बना दिया। सज्जन ठग को सज्जन संत बना दिया। इतने मेरे गुरु नानक पातशाह दयालु साथ संगत जी, मैं क्या बताऊं। मेरे मुख से वचन निकला नहीं कि पूरा हुआ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो घटना बड़ी प्यारी लगती है मुझे। तो पहले ये घटना पूरी कर ले, बीच में रह जाती है। सुबह भी एक पॉइंट बीच में रह गया था। मैंने कहा था भाई मर्दाना जी सो रहे हैं पास में, और बात कहीं और चली गई। फिर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ा प्यारा पॉइंट था, वो भी ले लेंगे, गुरु याद कराए बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये इंतज़ार कर रहे हैं पति पत्नी। पूरी रात घर की सफाई की, झोंपड़ी साफ की, भोजन तैयार करना शुरू कर दिया। स्नान करके नितनेम किया, भोजन तैयार किया। मेरे गुरु नानक पातशाह आए 4 लोगों को लेके, बैठे कहने लगे भोजन खिला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। जब भोजन आया, जो भी था बना के रखा था उन्होंने। गुरु नानक पातशाह चारों से कहते हैं अपने साथ 2 भाई बालाजी, भाई मर्दाना जी, 2 सिख और। उन्हें कहने लगे बड़े सत्कार से खाना। ऐसा जो भोजन ये है ना, ये वाला भोजन कभी कभी मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई लालू की सूखी रोटी, भाई लालू की सूखी रोटी भाई मर्दाना जी ने खाने से मना कर दिया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोदरे की सूखी रोटी थी, मोटी सी। गुरु नानक पातशाह मन की बात जाके, भाई मर्दाना जी मतलब देख के थोड़ी घृणा करने लगे थे, कैसे खाऊंगा मैं, इतनी दूर से पहले भूखा और ऐसी रोटी। तो गुरु नानक पातशाह कहने लगे मर्दानिया ज़बान पे रख के तो देख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार ज़बान पे रख के तो देखे टुकड़ा, क्योंकि 10 की मेहनत किरत नाम जपते हुए बनाई हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो जब भाई मर्दाना जी ने, भाई बालाजी कहते जब भाई मर्दाना जी ने छोटा सा टुकड़ा ज़बान पे रखा ना, कपाट खुल गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा रस आया। गुरु नानक पातशाह कहने लगे इसे चबाना नहीं, दांत नहीं लगाना, बेइज्जती नहीं करना, इसे रसना से रख के ही चूसना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
भाई मर्दाना जी कहने लगे पाँच और दे दो, कहते और नहीं मिलेगी अब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा स्वाद कहने लगा कभी किसी रोटी में आया ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा कहते हैं इसके घर में जाके चारों से कि ऐसी भोजन कभी कभी मिलता है, बड़े सत्कार से खाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पाशा ने खुद मांग कर भोजन खाया और फिर उन्हें इसके आगे ना वहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ साखी में कि क्या बातें हुई क्या नहीं हुई, पर मैं ये सोचता हूँ जिसके घर में गुरु नानक आ गया वहाँ पे बाकी बचा ही क्या। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या बचा फिर वहाँ पे, क्या नहीं आ गया होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 21 कुलें तर गई होंगी, अत का धनवान हो गया होगा, अवस्था भी ऊंची हो गई होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई चीज़ बच ही नहीं सकती जहाँ गुरु नानक आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन करते हैं जिथे गुरु नानक है वहाँ पे ऐसा क्या है जो नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जहाँ नाम नहीं, जहाँ पे कुछ भी नहीं, चाहे सब कुछ हो, कुछ भी नहीं, जहाँ मेरा गुरु नानक आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह एक खेतों में बैठे हैं, खेतों में। हाँ, दो पंक्तियाँ पढ़ ली साथ साथ में, शब्द भी बड़ा प्यारा है। करता कर आया, करता कर आया, करता करता कर आया, करता कर करता कर आया, करता कर आया, करता प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह भाई मर्दाना जी, भाई बालाजी खेतों में बैठे हैं किसी। भाई मर्दाना जी कहते भूख लगी पाछा, चने के खेत हैं, थोड़े चने खा लूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा कहने लगे नहीं भाई मर्दानिया नहीं, अगर कहीं मालिक दिखाई दे पूछ के खा सकता है, बिना पूछ के नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई मर्दाना जी साथ संगत जी, धन भाई मर्दाना जी। इतने इतने दिनों बाद इतिहास में लिखे कम से कम 3 दिन बीतते थे फिर बोलते थे भूख लगी है। 7 दिन तो कॉमन बात थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी कभी 3 दिन बाद कहते थे, भाई बालाजी लिखाते हैं, ये तो 7 दिन बाद कहते थे कि भूख लगी। 7 दिन तक भूखे रह लेते थे भाई मर्दाना जी। और गुरु नानक पातशाह को कहते थे आप तो पवन आहारी हो, और भाई बालाजी पे भी आपने नदर करके रखी है, मुझे ही पता नहीं मुझ पर नदर क्यों नहीं करते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई बालाजी को भूख नहीं लगती, आपने उस पर कृपा कर दी है, खुद आप पवन आ रही हो, पवन में से आहार ले लेते हो, मुझे भूख लगती रहती है। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। पर महापुरुष कहते थे, गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा देते थे, क्या चाहते तो भाई मर्दाना जी को पवन आहारी नहीं कर सकते थे, भूख मार नहीं सकते थे, पर जितनी भी घटनाएं पढ़ो गुरु भाई मर्दाना जी को भूख लगती थी, किसी के तरने का बहाना बनता था। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। वो भोजन मांगने जाते थे या भोजन लेने जाते थे, बहाना उनका ही बनता था, उनको आगे किया हुआ था। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। भाई मर्दाना जी कहते चने तोड़ के खा लो। गुरु नानक पातशाह कहने लगे नहीं, अगर मालिक दिखाई दे उससे पूछ के विनम्रता से फिर खा सकता है, अपने आप नहीं तोड़ के खाने, किसी की अमानत है। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। ज्ञान है, एक ऐसी घटना है मैं लेता नहीं, लोग फिर किंतु परंतु शुरू कर देंगे। फरीद जी के जीवन की घटना है, मैं लेते लेते रुक गया, मुझे पता है कि बड़े भोले लोग हैं, कहीं डर ही ना जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिंपल सी बात है, हम किसी का रख नहीं सकते, पॉइंट याद रख लो। चाहे आप उसका रख लो, आज सोचो कि मैंने किसी के पैसे मार लिए, किसी का हक मार लिया, किसी को कुछ सामान ले लिया, नहीं रख सकते, देना पड़ता है, कैसे भी करके देना पड़ता है। प्यार जी बोलिए धन गुरु नानक। मैंने उस दिन भी कहा था, बाबा नंद सिंह जितनी डिटेल में कहते थे, चने की हाथ गाड़ी पे खड़े होकर लोग चने खरीदते हैं, सिंगदाना खरीदते हैं,
जब तक वो पूड़ी बांधता है तब तक 4 दाने मुंह में डाल लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कॉमन सी बात है, हमारे लिए कोई बात ही नहीं है। मटर वाले के पास खड़े हुए मटर खाने शुरू कर देंगे, आदत है हमारी। पर कहते थे नहीं खाओ, उसका पैसा दे दो, नहीं तो देना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले तो आदमी के अकाउंट में अगर पैसे हैं, भाव अगर नित्यनेमी है, नाम जपता है, पुण्य है, पुण्य ट्रांसफर हो जाते हैं अपने आप। संतों की सेवा लोग क्यों करते हैं? क्यों चाहते हैं कि उनके दिए हुए कपड़े पहने, उनके दिए हुआ भोजन खाएं? क्यों? पता है बहुत कुछ मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और बाबा महाराम सिंह जी समझाते थे कि बहुत कुछ देना पड़ता है। कहते बड़ा कंट्रोल रखना पड़ता है मन को। दुनिया तो चाहती है कि सब कुछ दे दो फ्री में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो तो जब तक किसी की इच्छा नहीं पूरी करनी होती थी, बाबा महाराम सिंह जी उसकी चीज़ नहीं लेते थे, प्रवान नहीं करते थे कि ले ली तो इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो गुरु नानक पातशाह कहने लगे नहीं, हमारे हक के नहीं है, हम तोड़ कर नहीं खाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूर से एक लड़का, नौजवान लड़का 15-16 साल का, देख रहा है इन्हें कि महापुरुष बैठे हैं कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साथ में 2 लोग बैठे हैं। मन में भावना जागी कि मैं इनकी सेवा करूं। इसके चने के खेत थे, इसने बहुत सारे चने तोड़े और आगे ला के रख के बैठ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा महाराज खाओ ना। गुरु नानक पातशाह ने भाई मर्दाना जी की तरफ इशारा किया, खा लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने कहा गुरु नानक पातशाह से आप भी खाओ। तो गुरु नानक पातशाह ने इतिहास में लिखा 4 हिस्से किए। एक हिस्सा भाई बालाजी को दिया, एक हिस्सा भाई मर्दाना जी, एक अपने पास, और एक चौथा हिस्सा उस लड़कों को दिया, तू भी खा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 4 हिस्से में बांट के चारों ने खाए। ये लड़के ने भी खाए और गुरु नानक पातशाह भी खा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और लड़का खाते खाते मन में सोचता है कि भूख लगी है इन्हें, इससे क्या पेट भरेगा, मैं घर जाता हूँ, माता को बोल के कुछ बनवा के ले आता हूँ। गरीब लड़का है, थोड़ा छोटा सा खेत है उसका, बस ये इसी से गुजारा होता है। उठा मन में भावना रख के कि घर में जाता हूँ। गुरु नानक पातशाह कहने के कहाँ जा रहा है? कहने लगा मेरा मन किया कि आप फकीर लोग हो, सेवा करना चाहिए, तो मैं घर जा रहा हूँ, माता को बोल के जो भी बना होगा थोड़ा बहुत आपके लिए कुछ बना के ले आता हूँ, भूख लगी होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह ने इशारा किया बैठ जा, बिठा दिया। और गुरु नानक पातशाह ने ये वचन कहे साथ संगत जी, श्रवण कीजिए। उसकी भावना पे खुश होकर उसने क्या खिलाया गुरु नानक पातशाह को? चने, हरे चने जो होते हैं ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पोटे कहते हैं जिसे, अब वो तोड़ के खिलाए उसमें। और गुरु नानक पातशाह ने कहते हैं ना, भावनी भगत पाए कौड़ी अगर पाग रखे, ताई गुरु सर बनी धान दान देते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भावना श्रद्धा से कोई एक कौड़ी भी गुरु के आगे रख दे, श्रद्धा भावना से, गुरु उसे सारी दुनिया की निधान, सर्व निधान जो चाहिए उसे दे देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे सुख उसे दे देता है। गुरु नानक पातशाह उसकी सेवा पे प्रसन्न होकर, उसकी भावना पे प्रसन्न होकर कहने लगे तेरी भावना मेरे लिए पकवान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तूने पूछ लिया कि तू चला है बनवाने, मेरे लिए वही पकवान है, तेरा भाव, तेरी श्रद्धा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और क्या कहे गुरु नानक पातशाह ने? सत्तर तेरा लेप नियाली, पाओ तेरा पकवान, नानक सिफते तृप्तियन, आओ बैठ सुल्तान, नानक सिफते तृप्तियन, आओ बैठ सुल्तान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब धन कहो गुरु सतगुरु, जित मिल हर पर्दा कज्या, हर देवो दान दयाल, प्रभ जन राखो हर प्रभ लज्जया। सब धन कहो गुरु सतगुरु, जित मिल हर पर्दा कज्या। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर मेरे गुरु नानक पातशाह ने कहा 70 तेरा लेफ नियाली, पाओ तेरा पकवान, नानक सिफती तृप्ति, आओ बैठ सुल्तान, के सुल्तान बैठ जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
तूने पूछ लिया, तेरा भाव ही मेरे लिए पकवान है। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। मैं एक पॉइंट यहाँ लिखना भूल गया, जो यहाँ पे लिखा है 70 13 सेफ ले आनी। ये ना एक घास की बनी चटाई ले आया था, इसके पास थी, जो अपने लिए ला के रखता था, भोजन खाने के टाइम बिछा लेता था। वो घास की चटाई इसने बिछा दी थी गुरु नानक पातशाह के लिए कि इस पे बैठो। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। तो उस पर बिठा के इसने चने खिलाए थे। तो गुरु नानक पातशाह कहते हैं 70 13 लेफ नहीं आली। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। कि तेने जो मुझे लिए चटाई बिछाई है, मेरे लिए राज का तखत है। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि तेरा भाव है, वो सुंदर तख्त है मेरे लिए, वो तेरी चटाई। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। तेरा भाव मेरे लिए पकवान है, तू बैठ जा सुल्तान, बैठ जा। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। अब गुरु नानक पातशाह ने मुख से क्या कह दिया? क्या कह दिया? सुल्तान। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। और जब इतिहास में लिखे जितनी बार भी उठने जाने लगा, रात हो गई, बैठे बैठे शाम हो गई, रात हो गई, गुरु नानक पातशाह इशारा करके बिठा देते, बैठ जा। अमृत वेला हो गया, अमृत वेले कीर्तन हुआ, भाई बालाजी ने कीर्तन, भाई मर्दाना जी ने रबाब छड़ी, गुरु नानक पातशाह ने कीर्तन किया। अमृत वेले की समाप्ति हुई तो गुरु नानक पातशाह कहते लगे जा। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। क्यों रोका? क्या किया गुरु नानक पातशाह ने? उसी नगर में जहाँ पे रहता था, वहाँ का राजा की रात को मृत्यु हो गई। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। मंत्रियों ने कहा ना इसका कोई बेटा है, ना कोई औलाद है, ना कोई भाई है, क्या करें? सारे मंत्रियों ने मता पकाया कि अगर हम में से कोई बन गया तो हम नमक हराम कहलाएंगे। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। हम ऐसा करते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं शहर का, नगर का, और सुबह सुबह अमृत वेले के बाद, ब्रह्म मुहूर्त के बाद इस दरवाजे को खोला जाएगा। जो पहला आदमी एंटर करेगा, कोई भी हो, उसे राज तखत का मालिक बना देंगे, सुल्तान बना देंगे। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। वचन निकले थे गुरु नानक पातशाह के मुख से चने खा कर केवल, कि सुल्तान बैठ जा। और जैसे ही ये वापस गया, अमृत वेला करने के बाद भेजा, जैसे ही दरवाज़ा खुला, ये भाई पहले अंदर। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। वो जैसे ही इसने नगर में प्रवेश किया, सारे मंत्री उसे उठा के ले गए, भाई तू राजा है। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। तू ही हमारा सुल्तान है। ये सुल्तान की गद्दी पर बैठकर सोच रहा है कि वो कौन थे जो आए थे। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चने के खेत वाले को, खेती बाड़ी करने वाले किसान को सुल्तान बना दिया गुरु नानक पातशाह के एक बचन ने। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उनके बचनों की कीमत समझो। क्या कहा है गुरु नानक पातशाह ने? कि जिस सोने को राजा ने तिजोरी में रखना होता है, उस सोने को परखता है। जिस तरस आ जाए कि इतने जन्मों से भटक रहे हैं, हम पे तरस आ गया है कि इतने जन्मों से हम भटक रहे हैं, भटक भटक के अब जाके यहाँ सत्संगत में प्राप्त हुए हैं, मिले हैं, थोड़ा ज्ञान मिला है। गुरु नानक पातशाह कहते हैं जिस इंसान को अपने से मिलाना हो, तरस आ जाए जिस पे, उसे अमृत वेला बख्श देते हैं। और क्या करें वो, और क्या करें? गुरु नानक पातशाह ने उसे एक वचन कहा, हमें भी तो वचन दिया है कि अमृत वेला जप ले, जो चाहिए ले ले। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। क्यों घुट घुट के गरीबी में मरना? क्यों बीमारियों से डर के, या किसी से डर के जीना? खुल के जियो ना, आनंद से जियो ना। यहाँ भी सुखी रहे, वहाँ भी सुखी रहे। जो थोड़ा कि वहीं सुखी रहे ना, यहाँ दुखी रहे। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। अगर यहाँ नहीं सुख प्राप्त कर सके, वहाँ का सुख तो बड़ा महंगा है। अगर नाम हमें यहाँ सुख नहीं दे सका तो वहाँ क्या देगा? बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। इसमें सारे सुख हैं। गुरु नानक पातशाह कहते तू अमृत वेला संभाल, देंदा दे लहंदे तक पाए जुगा जुगंतर, जितना चाहिए ले ले। साचा साहिब, सारे पढ़ो ना। साचा साहिब पाख्या पाओ, आखे मंगे, दे दे दात करे, फेर के आगे रखिए, जित दिशा दरबार मुंह के बोलन बोलिए। क्या क्या बोलूं मैं मुंह से कि तू मुझे प्यार करे? अमृत वेला सच नाम। अमृत वेले उठ के सच्चा नाम जप ले, नाम जप ले। वड्याई विचार कर्मी आवे, नदरी मोख दुआर, मुक्ति मिल जाएगी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। नानक एवें जानिए, ये तरीका है, ऐसे एवें सब आपे सचियारों की गिनती में आ जाएगा, झूठों की नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक अब यहाँ पे एक पॉइंट और भी देखो ना, कितना कीमती है। एक रात उस लड़के को अमृत वेला कराया, एक रात।
ऐसे भी भेज सकते थे कि सुबह चले जाना, दरवाज़ा खुलेगा, नहीं, बिठा के रखा और उसने वचन मान के बैठा। वो कहता नहीं मुझे घर जाना है। तो बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ा विचार करो पॉइंट पे। बैठा, अमृत वेले के बाद गया वचन मानकर। एक रात उसने अमृत वेला जागा, सुल्तान बन गया। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। एक रात, अगर वो अमृत वेले नहीं जाग रहा होता, सुबह सुबह एंट्री नहीं करता, सुल्तान कैसे बनता? बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेले दाते लूटने का समय है, दाते लूटने का। लोग कहते हैं नाम दान चाहिए, बादशाह कहते हैं नाम का दान अमृत वेले मिलता है। रात कथूरी वंडी है, सुत्तियां मिले न भाव, कि रात का समय है जब नाम रूपी कस्तूरी निरंकार बांटता है। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। पर जो सोए हैं उन्हें कैसे मिलेगा? खुद सवाल पूछ रहे हैं पाचा। रात कथूरी वंडी है, सुत्तियां मिले न पाओ, जिना नैन नींद रावले तिन्ना मिलन खुआओ। जिनकी आंखों में अमृत वेले नींद है, नींद से भरी हुई आंखें, सो रहा है भाव, उसके जीवन में तो रोना ही लिखा है। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेला सोने के लिए नहीं बना, अमृत वेला जागने के लिए बना है। 4 पहर रात के दिए हैं, 1 पहर खाना पीना जो करना है करनी कर ले। ये समय होता है 6 से 9, 9 से 3 बजे तक सोने का समय बना है 2 प्रहर, 3 से 6 1 पहर नाम जपने का प्रहर बना है। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। जो महापुरुष होते हैं वो 12 बजे स्नान करके बैठ जाते हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद भी वो ब्रह्म मुहूर्त गिना जाता है। पर जो हम गृहस्थियों के लिए, गुरु नानक पाशा कहते थे 3 से 6। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। कोई ज़्यादा ऊंची अवस्था चाहता है तो 2:15 बजे, 2:15 बजे बैठ जाए समाधि में। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। देखो ना गुरु नानक ने कितना तर्स किया। 2:15 बजे लिंक आता है पाठ का, 2:15 बजे, 1:45 बजे लिंक आता है, 2:15 बजे श्री जपजी साहब जी का पाठ स्टार्ट होता है। 2:15 बजे राइट टाइम जो गुरु नानक पाशा ने कहा था, ये हमने सोच समझ के नहीं किया, अपने आप शेड्यूल बन गया, ये गुरु नानक ने बना दिया। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। वो पाठ जो सुनते हैं, जो करते हैं साथ में, 2:15 बजे वाला गुरु नानक पाशा के बच्चे ने जो उस समय श्री जपजी साहब जी का पाठ करता है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। श्री जपजी साहब जी जरूर अमृत वेले उठ के पाठ में जुड़ा करो संगत जी, जरूर। चलो कई लोग ऐसे होते हैं आलसी, नहीं उठ पाते, 2:15 बजे का अलार्म लगा लिया करो, पाठ लगा के सो जाओ। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। या उनको कह रहा हूँ जो नहीं उठते, नहीं उठना चाहते, मैं आप लोगों से कह नहीं रहा, मैं कैमरे में कह रहा हूँ। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। कहीं छूट नहीं समझ लेना इसे, पाठ लगा के सो जाओ। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। भाई जो नहीं उठ पाते, पता है नहीं उठना ही नहीं है, कम से कम पाठ बाणी में पास में लगा के सो जाओ, कानों में आवाज़ जाती जाएगी, 2-4 पंक्तियाँ भी चलेगी, भला हो जाएगा, वाइब्रेशन बनी रहती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वैसे भी जब सोते हो पास में मोबाइल तो रहता ही है सबके पास, हल्की सी गुरबानी लगा के सोया करो, बहुत फर्क पड़ जाता है, नींद भक्ति बन जाती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। करता कर आया, 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 करता कर आया। दहन पया गोविंद प्रगटाया, दहन पया गोविंद प्रगटाया, नस वंजो
नसी मंजो पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूरन होए चित के इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सब है तुम कावो आप हाथ दे मोए बचावो। सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आज संगरिए। पूरन होए हमारी आशा और भजन के रहे प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई और ना त्याओ जो पर जाओ सो तुम ते पाओ। सेवक सिख हमारे तारिए सुन सत्र हमारे मारिए। आप हाथ दे मुझे उभरिए मरण काल का त्रास नुवरिए। हो जो सदा हमारे पछा श्रेयस तुझ जो करियो रक्षा। राख लियो मोए राखण हारे साहिब संत साहिब प्यारे। दीन बंधु दुष्टन के हंता हो पुरी ततर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिव जो अवतारा। काल पाए कर विष्णु प्रगासा सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जो थियो। जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताए हमारा। जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जक्षण उपजायो। आद अंत के अवतारा सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारे। सेवकन को शिव गुण सुख दियो सकरन को पल मोहब्बत कियो। कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंजर अस्तोला सब पर कृपा दृष्ट कर भोला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान कट कट के पट पट की जान। जब उद करक करा कर तारा प्रजा तर्क तब दे अपारा। जब वह करक करत हूँ कब मैं बिन तो दे तर सब जेते बदन श्रेष्ठ सब धार आप आपने मोजे उतार। तुम सब ही ते रहत निरालम भेद भेद अरे आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद संभव। तांका मूढ़ उचारत भेदा को पेव न पापद भेदा। तांको कर पान अनुमानित महामूढ़ कछ भेद न जान। महादेव को कह तु सदा शिव निरंकार का चीनत न पेव। आप अपनी बुध है जेती तो पेन पेन तो तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा कुछ सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयोराव कई कोपा। अंडज जेरज से तज कीने कुछ खान बहो रच देने। कहूँ फूल राजा हव बैठा समट प्यो संतरे बैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप से अम्बव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवते उत्पाता सगल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तव सरणी पर के दुष्ट दुखत हव मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे इनके तुम संकट सब तारे।
जो कल को एक बार ते है आके काल निकटने है रक्षा होई ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट डरे तत्काला कृपा दृष्ट संजाय निहारो आके ताप तनक मोहर और तो सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट छा छह सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा पास ते ताए जिन नर नाम तिहारो कहा दुष्ट लोक ते रहा खड़ग कीत में शरण तिहारी आपो हाथ दे ले उबारी सर्व डोर मोह सहाय दुष्ट लोक ते ले बचाई खड़ग कीत में शरण तिहारी आपो हाथ दे ले उबारी सर्व डोर मोह सहाय दुष्ट दुख ते ले राम कली महला तीजा आनंद क्यों कार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु का पाया सहज से मन वजिया वाधाया राग रतन परवार परियां शब्द गावण आइया आनंद होआ सतगुरु मैं पाया मन मेरा तू सदा रो हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना साचे साहिबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब कुछ है जिसे सो पावे तेरी नाम मन सावे नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द मेरे कहे नानक सच्चे सैव क्या नहीं घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन फुका सब गवाइया करसान सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पूजाइया साचा नाम मेरा आधारो साचा नाम मेरा वाजे पंज शब्द घर सबागे सबद वाजे कला जी करतारियां पंज दूत वस कीते काल कंटक मारिया पाया तू जिनको से नाम रटे लागे कहे नानक दस को आदित करे नदवाजे मन सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल सूरे संताप उतरे सुनी सच्ची बानी संत साधन पाए सबसे पूरे गुटे जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुरु रे पर पूरे बिनवंद नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहद तुरे सलोक पवन गुरु पानी पिता माता तक महात जिसराब दाई गाया खेले सगल जगत चंगियां बुरियां वाचे धर्म हदूर कर्मी आपो अपने जिन्नी नाम ध्याया जिन्नी नाम ध्याया जिन्नी नाम ध्याया जिन्नी नाम ध्याया वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
शक्कत काल। नानक ते मुख ऊजले खेती छोटे नाल। बोलो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः
गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की।